vectors. But see here, if this is a vector A and this is vector B, if you are asked to find A cross B, A cross B, बेटा जब भी whenever we write A cross B, इसका मतलब क्या होता है? We write A B sin theta. बेटा ये लिखने का पर्पस क्या है एंड यहां एन कैप पुट करने का पर्पस क्या है? व्हाट इज एन कैप? पहली बात सी हियर बेटा A क्रॉस B is equals to AB sin theta. But this is A. If you draw from A to B, if you go from A to B anti-clockwise, this is the plane of these two vector A and B. And normal to the plane is either perpendicularly outward or perpendicularly inward. Now see here, if you rotate, if you are asked to determine A cross B, but आपको क्या निकालना? You have to find out A cross B. This is the plane of your board. N cap normal to the plane A cross B का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन क्या होगा? A क्रॉस B प्लेन से. स्क्रू जानते हो बेटा, स्क्रू को घुमाओ ऐसे, A क्रॉस B एंटी क्लॉक खुलेगा, खुलेगा आउटवर्ड आएगा. राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये ऐसे आया बेटा. Thumb points to the direction of A cross B vector that is normally outward. No, बेटा यहां से परपेंडिकुलर डालो. This become right angle triangle. This is 90 degrees. So this is hypotenuse. What is sin theta? What is sin theta? Sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. What is hypotenuse? Side facing 90 degree B. तो बेटा ये डिवीजन ये इधर चलाएगा प्रोडक्ट में B sin थीटा. बेटा बताइए B sin थीटा है क्या? B sin थीटा क्या है? इसे हम इस तरह से लगा सकते हैं बेटा, ऐसे लगा देंगे और इसी डायग्राम को दूसरी तरह से ड्रॉ करेंगे. दिस इज वेक्टर A एंड B को यहां से उठाकर यहां लाइए, इसके पैरेलल में ये है बेटा. दिस इज B sin थीटा. Now see here, tell me, A क्रॉस B का मतलब होता है AB sin थीटा, यानी कि फर्स्ट वेक्टर और दूसरे वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का प्रोडक्ट. बेटा दिस इज फर्स्ट वेक्टर, this is second vector, but we have taken only the perpendicular component, not the parallel. In case of dot product, we keep on taking B cos theta, because cos theta is equal to base upon hypotenuse, so base becomes B cos theta, base becomes B cos theta, and perpendicular becomes B sin theta. Now see here, A cross B means B sin theta into A. This is A and this is B sin theta. It means that cross product is the product of one vector and take the component of second vector perpendicular to this. What is the perpendicular component? Parallel component is B cos theta. This is vector. Parallel component is B cos theta. Perpendicular is B sin theta. So we can say that cross product to two vectors is the product of one vector, and take the perpendicular component of second vector, that is B sin theta. So beta, what is cross product? This is the product of two vectors, where we take the product of one vector and the component of second vector in the perpendicular to first vector. This is actually the meaning of this AB sin theta. Now you see here, if this is B sin theta, you draw perpendicular, you draw parallel lines. This is B sin theta. Now A into B, length into breadth. This is the area of the rectangle. Area of the rectangle. Or we can see that here beta, this is B and this is B sin theta, perpendicular. Now you draw parallelogram, parallel to A, draw A,
parallel to B, draw B. Now base into height is the area of the parallelogram. Base into height, B sin theta. Base into height. What is height? B sin theta. What is height? B sin theta. B sin theta हो गया बेटा. So you write down beta, 1 minute you write down, one line you write down. The cross product of two vectors. Write down only one line. Cross product of two vectors A and B inclined to each other by angle theta is the product of the magnitude of the two vectors and sine of the angle between the two vectors and sine of the angle between the two vectors. Full stop. The direction of cross product of two vectors, the direction of cross product of two vectors is perpendicular to the plane of two vectors A and B. And its direction can be found out by right hand screw rule. Right hand screw rule. Right hand screw rule. बेटा भाविक टेल मी, भाविक बताना बेटा, अगर ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, ये बोर्ड के प्लेन में है, भाविक अनम्यूट करना बेटा, भाविक अनम्यूट करो बेटा. Q क्रॉस P का डायरेक्शन किधर होगा? Q और P इसी प्लेन में है तो इसका डायरेक्शन एन कैप होना है. एन कैप मींस नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि बोर्ड के अंदर या बाहर. जल्दी बताना Q क्रॉस P का डायरेक्शन किधर होगा? कौन बताएगा? कोई भी एक भाविक बताना बेटा जो समझ आया अभी. बेटा अंदर होगा या बाहर? जल्दी बताओ. मैंने बता दिया, तुम स्क्रू घुमाओ. राइट हैंड स्क्रू. स्क्रू तो घुमाते हो घर में. चलो बेटा भाविक आंसर दो बेटा. अंदर या बाहर? इनवर्ड या आउटवर्ड? दो में से एक होगा. बेटा बोल भी दो. इनवर्ड आउटवर्ड, दो में से एक. सर बाहर होगा. बाहर होगा. अब देखो बेटा, मैंने बोला स्क्रू घुमाओ. बेटा घर में तुमने स्क्रू नहीं घुमाया है अभी तक. Q से P को ऐसे घुमा रहे हैं. स्क्रू को ऐसे घुमाना, आज अभी ऐसे घुमाना, अंदर जाएगा, इनवर्ड होगा. तो Q P साइन थीटा माइनस एन कैप, अंदर के लिए माइनस. तो P क्रॉस Q रहा तो क्या लिखेंगे? P क्रॉस Q. देख रहा है बेटा? P क्रॉस Q. बताना तो स्क्रू को ऐसे घुमाना, ऐसे घुमाना. खुलेगा? खुलेगा. खुलेगा तो नट किधर आएगा? अगर इस प्लेन पर कोई नट को तुम टाइट कर रहे हो, पहले टाइट कर रहे थे, अब खोल रहे हो, ये ऐसे खुलता है ना. खुलेगा तो किधर आएगा? बाहर या अंदर? तरुण बेटा ऐसे खुलेगा कि बंद होगा? ये जो
पी क्रॉस की खुल रहा है या बंद हो रहा है तरुण? खुल रहा है सर। खुल रहा है तो आउटसाइड आएगा। वेरी गुड वाले ने, वेरी गुड। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा पी क्यू, पी का मैग्नीट्यूड, क्यू का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, लेकिन ये प्लस एन कैप आएगा आउटवर्ड द प्लेन। हो गया, कौन सी बड़ी बात है। चलो अब एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर होते हैं तो एक रूल आता है, अगर दो वेक्टर आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस और जे कैप मीन्स वाई एक्सिस, तो बेटा जल्दी बताना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सामने की ओर देखो इधर इस प्लेन में एक्स वाई और इसके परपेंडिकुलर जो मैं इसके बाहर की ओर ऐसे लाइन आया, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए क्या यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस के लिए के कैप। देखो बेटा अभिषेक, बेटा आई कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, के कैप जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। बेटा ये है क्या, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आई कैप मतलब इतना न्यूटन, 4 आई कैप में 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में बेटा, एक्स एक्सिस। बोलो बेटा 8 जे कैप कौन सा डायरेक्शन है बेटा, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, जे मीन्स कौन सा डायरेक्शन बेटा, वाई एक्सिस। हाँ बोलो बेटा रुद्र, कौन सा डायरेक्शन लग रहा है, में माइनस निगेटिव वाई एक्सिस में लग रहा है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में, निगेटिव वाई एक्सिस में, ठीक है। नो अभी देखो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन, बोर्ड किस प्लेन में है, एक्स वाई, इसके परपेंडिकुलर कौन है, जेड एक्सिस के कैप। तो जल्दी बताओ आई क्रॉस जे डायरेक्शन किधर होगा, जल्दी बताओ इसके हिसाब से, आई क्रॉस जे डायरेक्शन किधर होगा, याद रखेंगे रूल, आई क्रॉस जे, आई जे के, जल्दी बताओ आई क्रॉस जे का डायरेक्शन किधर होगा, के कैप की ओर होगा, आई जे के बाद के, आई क्रॉस जे के। देखो आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा बेटा, रुद्र किधर होगा बेटा, आउटवर्ड या इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, खुल रहा है नॉट, आउटवर्ड इनवर्ड कौन है, के कैप, आउटवर्ड कौन है, के कैप, कौन के कैप, आई क्रॉस जे के कैप। जल्दी बताओ जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे के बाद कौन आता, आई जे के आई, जे क्रॉस के, जल्दी बताओ जे क्रॉस के आई, फिर के क्रॉस आई, बताते जाओ जो आगे आ रहा है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे, उस इसका उल्टा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा घुमा रहे भाई, जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अब पहले एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, देखो नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, आई क्रॉस जे के पॉजिटिव। अब उल्टा जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, नट किधर जाएगा, इनवर्ड जाएगा, इनवर्ड के लिए माइनस बेटा, नॉर्मल आउटवर्ड प्लस और इनवर्ड, नॉर्मल से आउटवर्ड प्लस इनवर्ड माइनस, जे अब क्लॉकवाइज प्लस। अब यहां देखो ये तो मैंने ट्रिक बताया बेटा, ट्रिक बताया ना, आई क्रॉस जे के, तो जे क्रॉस आई माइनस के, इसका उल्टा आई क्रॉस जे के, तो जे क्रॉस आई माइनस के, उल्टा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा बेटा, के क्रॉस जे माइनस आई। Note down all of you. Now you see here, I cross K, I cross K क्या हो जाएगा बेटा, माइनस जे कैप। Just note down this rule.
And now see here, after that we will do some cross product of the two vectors. Just remember this one. बेटा मैंने आपको दिया two vectors A 8i cap plus 9j cap plus 11k cap. B 4i cap plus 5j cap plus 6k cap. Beta find A cross B. A cross B. Yes, find out. Yes, बेटा टॉर्क मैं बताऊंगा इसके बाद. व्हाट इज ए क्रॉस बी? बेटा पहले ये मैथमेटिकल स्टेप सीखिए. जो बच्चे मैथमेटिक्स लिए हैं वो भी इसे सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स मेथड से. लिसन हियर बेटा, सी हियर राघव, सी दिस रूल हाउ वी कैन सॉल्व. बेटा ए क्रॉस बी, बेटा ए को पहले लिखिए, बी को बाद में. अगर बी क्रॉस ए रहता तो बी पहले और ए बाद में. चलिए आई कैप पहले, जे कैप उसके बाद, के कैप. और बेटा ये रूल यहां नहीं लिखा रहता है किसी बुक में. मैं फिर से एक बार आई कैप लिख रहा हूं, किसी बुक में ये दोबारा नहीं लिखा रहता. नो 8 4. आई कैप कितना है बेटा? ए का 8 एंड बी का क्या है बेटा? 4 है. ए का जे कैप क्या है बेटा? 9 और बी का है 5. बेटा के कैप, ए का के कैप क्या है? 11 और बी का के कैप क्या है? 6. चलो एक्स को 8 4. चलो बेटा अब आई कैप ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं हमें. तो आई कैप पहले लिख लेंगे डायरेक्शन. आई कैप डायरेक्शन में कब आता है? जल्दी बताओ. आई कैप डायरेक्शन में कब होता है? जब प्रोडक्ट जे के का होता है. आई कैप के डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट कब आता है बेटा? जब प्रोडक्ट जे क्रॉस के होता है. आई कैप तो इसे नहीं करना है, प्रोडक्ट तो जे क्रॉस के का होगा, इसलिए आई कैप को हमने ओवरलैप कर लिया. ओवर सुपर इम्पोज कर दो. इसका तो काम ही नहीं है, जे क्रॉस के का काम है. तो दिस इनटू दिस, ऊपर से नीचे, क्योंकि ये ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी को फिर उल्टा ऐसे करेंगे बेटा, ऐसे. बेटा जे क्रॉस के आई, ए से बी को करना है के क्रॉस जे. जल्दी बताओ बेटा, के क्रॉस जे क्या होता है? माइनस आई. तो जब इसका प्रोडक्ट करेंगे जे क्रॉस के तो प्लस आएगा, और के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस होगा. सिंपल सा रूल. बेटा इतनी अगर बातें समझ आएगी तो बहुत सिंपल सा रूल. क्या है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. 9 6 जा 54 माइनस 11 5 जा 55 प्लस जे कैप डायरेक्शन में, जे कैप को ओवरलैप कीजिए. दिस इंटू दिस minus this into this. 8 6 जा 48 plus k cap. k cap डायरेक्शन में कब आता है बेटा? I क्रॉस j. इधर नहीं, इधर देखिए. k cap डायरेक्शन में कब आता है बेटा? k cap डायरेक्शन में कब आता है? जब I क्रॉस j का होता है. इसे ओवरलैप कीजिए, इन दोनों को प्रोडक्ट. दिस इंटू दिस 8 5 जा 40 माइनस 9 4 जा 36. फिर से देखो बेटा, रूल बहुत सिंपल सा. क्या करना है बेटा? जब भी हमें आई क्रॉस डायरेक्शन में निकलना होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं बेटा? जे क्रॉस के का. इसीलिए आई कैप को ओवरलैप करो, काम ही नहीं है. आई कैप के डायरेक्शन में निकालना आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता. जो इसके आगे this into this minus this into this. 9 6 जा 54 minus 11 5 जा 55. जे कैप डायरेक्शन में जे कैप को ओवरलैप करो. this into this minus this into this. के कैप डायरेक्शन में, इसके आगे नहीं. के कैप डायरेक्शन में जो होगा I क्रॉस J. this into this minus this into this कर दिया.
बेटा ये करो -1 आई कैप, आंसर आ रहा है। ये क्या हो गया बेटा -4 जे कैप, और ये क्या हो गया बेटा +4 कैप के कैप। दिस इज द आंसर। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। Yes, but all of you tell me how much you have understood. Just show me your response. Yes, everybody. बेटा tell me सबको कितनी बातें समझ आई बेटा? Yes, everybody. Very good.